So, बहुत अच्छे stages हैं, बहुत अच्छे मेरा reason like Sudhir bhaiya is already sitting over here to initiate a platform towards the artists for such a big to motivate the artists to come on the stage and perform. Then there are so many other people, those who are doing it properly, like they are giving the stage to the children, to the people, those who are training children for this. So this is something like Agra में इसका एक बहुत अच्छा है scope and लोग इसको बढ़ा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं. पर अगर और हम उसको अच्छे से कर सकते हैं तो we are always there to do. और हम करना भी चाहते हैं कि नए लोग भी आगे आए, वो भी करें, जैसे कि आपने हमें यहाँ बुलाया. इसका भी मुझे एक बहुत अच्छा लगता है कि इट इज समथिंग वेरी गुड कि आप आपस में मिल पाते हैं, अपने व्यू शेयर कर पाते हैं और नए लोगों को देख पाते हैं. So this is something very very nice. First of all, वो एक शेर है कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर तो मिले फिर उन्हें सलाम करूं. मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ू बस फसाना, कहाँ तमाम करूं. तो first, can I say a few more things apart from what you have just asked? First of all, I would say that this has been an incredible evening for not only for me, I think all of us present here. And this is a kind of a program, I think, when I am doing the next one, I would say, because it is so good that when we come here, each and everyone who is an audience here, you have given so much respect to each and every individual who is present here, first of all. And ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, आओ अच्छा सा प्रोग्राम भी देखो, गिफ्ट भी लो और खाना भी खाओ, मस्त, क्या बात है. इसलिए हम कुछ रहा अगला तो So there should be a round of applause for Ansel. Absolutely. Now let me stand. There are a couple of things that I would like to say, which I was just talking to the news persons outside. Just because of you, I didn't know about Mr. Abhishek. And I'm thankful to you that you have introduced me to this gentleman. And Saurabh ji, of course, you are a wonderful performer. Coming all the way from Kolkata, I guess. Right? Agra, per se, is a gharana, of course. But the gharana itself is basically and essentially a vocal music gharana. And I'm fortunate enough to say that I have learned from this gharana, Ustad Shabir Khan Sahab. When it comes to dance, Agra, I don't think has any gharana, right? But we do have gharanas like in Lucknow gharana, Banaras gharana, and of course Jaipur gharana. And these gharanas are like out of this world. Not only in UP, but all across the world. People are aware of the richness of the Kathak gharana, various gharanas. Like when the dancers are here, they know more than I know. But since I have played tabla on Kathak, so that's why I know a little bit of Kathak. And let me tell you my understanding of dances, and of course a little bit of Bharatanatyam too. My sister Usha Sharma, who lives in
Canada right now. She has been there for over 45 years. She is running a school, dance school, and Manohar Performing Arts of Canada, which is a very, very popular organization all across Canada, or North America, I would say. So, having said that, I had an opportunity, distinct opportunity, I would say, to do some music on Kathak and blending it with Bharatanatyam. If you, I don't know if you have heard of a Guru Balasai in Chennai. The Guru for the Carnatic music is done by him, whereas the North Indian Kathak music is done by him. We do it here. And Renu is sitting here, I have done some work with them also. And I keep on doing, there's so many ballets that we have performed there in Canada and US, of course. So far we have done, I think, 9 or 10 huge shows. Having in North America to have around like 1,000 people, it's a huge achievement. Because the diaspora is not that big. So when it comes to dance, I know a little bit about it. Now secondly, now let us come to another point that you have just mentioned. Because as far as your understanding of Bharatanatyam, and not only understanding, but as a performer also, you are an incredible performer. You have done a very good job today. Now, as far as the extent and scope, I would, as far as I am concerned, because I have been in, I have been connected with so many organizations doing, various programs for the government as well. And besides government also, we did so many programs in the backdrop of Taj Mahal and in Taj Mahotsav and a couple of other occasions. Let me tell you about myself. Like, my understanding was, we have an Odissi dancer. There is nobody here. So I always used to go to Vrindavan. But there are some dancers in Vrindavan. उनको हम आमंत्रित करते हैं और इसीलिए मैंने अभी अभिषेक जी से अनुरोध किया कि कुछ मुझे आप अपनी क्लिप्स दीजिए। अभी हमने स्कोप की बात आप कर रहे हैं, तो डांस का बहुत बड़ा स्कोप है। ये रिमू बैठ के यहाँ पे रोशनी जी, हाँ राइट हियर, अभी G20 का हुआ था, when this G20 conference was there. And India was the host. Yeah. So, just to welcome them, and at the airport, we had Roshni ji's group. They performed at the airport. So, any such occasion, we look forward to having, wonderful artists like you guys. So, the scope is like endless, provided how you harness it. Then, as far as support is concerned, and I can see the wonderful support that you already have it. Each and every individual is so talented and so worthy that they can really promote any kind of art form. This is one. And then, of course, now you said about since you learned this music and now you want to disseminate that and share it with students here, right? So this is a wonderful thing that you would like to do. And I, as an alright, would like to welcome that. भाई सामने बैठे हुए जिनके साथ बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ, अभी से नहीं हूँ, काफी जब मैं शायद
3 या 4 वर्ष की थी, मैंने आगरा में संगीत अपना तब से प्रारंभ किया। और जो अवसर की बात कर रहे हैं, तो अवसर मुझे यहीं से मिलना शुरू हुए। आज मैं दयालुआ विश्वविद्यालय में कर्ता प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। तो इन अवसरों की वजह से ही मैं आज इस मुकाम को प्राप्त कर पाई हूँ। उसमें सभी लोगों का सहयोग रहा है। मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देना चाहती हूँ आंचल जी को कि उन्होंने एक ही स्थान पर सभी लोगों को यहाँ पर एकत्रित करके हम सब लोग एक बार पुनः मिल पाए, जबकि जल्दी जल्दी शायद मिलना हम लोगों का नहीं हो पाता है, तो हम मिल पाए एक जगह पर। गर्मियों की छुट्टियां हैं तो उसका एक आनंद भी हम लोगों की छुट्टियां प्रारंभ हुई थी। और नृत्य का जो आपका परफॉर्मेंस था, आपका जो आपकी प्रस्तुति थी, जो आपने भरतनाट्यम में जो गायन वादन और नृत्य, जो तीनों का हमें जो समन्वयात्मक को मिला। क्योंकि भरतनाट्यम एक ऐसी विधा है जो सबसे नजदीक हमारे अध्यात्म के करीब है। हम अध्यात्म से जितना इस ओडिसी हुआ, भरतनाट्यम हुआ, जितना हम ये साउथ के जितने भी डांसेस हैं, हम सबसे ज्यादा नजदीक, ईश्वर के सबसे ज्यादा नजदीक हम इसमें अपने आप को पाते हैं। और जो आपने जो आज राधा कृष्ण की या और कथानक जितने भी आपने भरतनाट्यम की जो भी आपके भिन्न भिन्न आपके जो चरण होते हैं जो आपने यहाँ पर प्रस्तुत किए, वो वाकई आपके काबिल तारीफ है। आपने उसमें जो मुद्राओं का जो प्रयोग, सबसे अधिक प्रयोग भरतनाट्यम में मुद्राओं का होता है। हमारा जो कथक नृत्य है वो हमारी कम मुद्राओं में काम कर लिया जाता है, क्योंकि वो जीवन के ज्यादा नजदीक है। हम जो अपना आम जिंदगी जीते हैं, हम उसमें जो अपनी जो चीज हम प्रस्तुत करते हैं वो हमारी सब जो हमारा पक्ष, जो क्रियात्मक पक्ष होता है, वो जीवन के नजदीक होता है। यह हमारा आध्यात्म के नजदीक है। तो इसमें मुद्राओं का जितना ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है, वो उतना ही हमारे को स्पष्ट उसका स्वरूप है, उसका भावपूर्ण प्रस्तुति है, उसकी समन्वयात्मक प्रस्तुति, वही हमको एक उसके अंदर आकर्षक प्रदान करती है, हमारे अंदर सौंदर्य की अनुभूति कराती है, आनंद की अनुभूति कराती है। तो अब दूसरी इनका प्रश्न था आंचल जी का कि मान तो आपने यहाँ पर हम सबको इतना दिया, जैसा सुधीर भैया ने बताया कि आए भी, लिया भी, खाया भी तो मान की बात तो जब आप जैसे लोग आगरा में मान सम्मान कर रहे हैं, तो ऐसा शायद सभी लोगों के कहीं कहीं हम लोग इस चीज से जुड़े हुए हैं। तो मान, अच्छा मान है आगरा में डांसर्स का, हमारे जो भी नृत्यांगनाएं या हम लोग जो है, मान हमको मिलता रहता है। अवसर भैया, सुधीर भैया है, गवर्नमेंट की तरफ से जो अवसर मिलते हैं वो जहाँ जहाँ जिसको मिलते हैं वहाँ वो देते जाते हैं। ऐसा नहीं है किसी एक को ही देते हैं, वो सबको बराबर देते चले जाते हैं, अवसर प्रदान होते रहते हैं। और कुछ जो अवसर हैं उनके बारे में मैं आपको बाद में थोड़ा सा बताती हूँ। दूसरा था आपका संगठन। तो संगठन में शक्ति है, हम जब सब एक होकर के कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से ही हम कुछ ना कुछ मुकाम को प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि यदि देखिए, हम ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि हम सब शिक्षक हैं और आप भी अलग अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आप अपना चलाएंगे, आप अब स्टार्ट करेंगे, या आप जो शिक्षा देने जा रहे हैं विद्यार्थियों को वो देंगे। बाकी रीनू जी शायद अपना चलाते हैं, राशि मैडम के अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं, रोशनी जी भी बैठी हुई है, वीरा जी भी बैठी हुई हैं, सब क्या अच्छे विद्यार्थी सीखते हैं, अभिषेक जी भी। तो हम एक कार्यक्रम ऐसा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हम पूरा मंथली उस प्रोग्राम को चलाएं। एक्सचेंज प्रोग्राम, उसमें हम एक्सचेंज प्रोग्राम हम अपने इंस्टीट्यूट में कभी आपको हमने बुला लिया, कभी हमने आपको बुला लिया, तो क्योंकि हम जो सिखा रहे हैं वो हम सिलेबस सिखा रहे हैं, एग्जाम भी दिलाते हैं, क्योंकि आप उद्देश्य ये भी होता है कि बच्चों को डिग्री मिले या बच्चों को डिप्लोमा मिले। तो उस डिग्री डिप्लोमा से जोड़ने के लिए हम एक्सचेंज प्रोग्राम भी कर सकते हैं। आप जाकर के उनके विद्यालय में सिखाए हैं, आप उनके विद्यालय में, तो बच्चों को जो आपके भरतनाट्यम के जो गुण है उनसे भी बच्चे एक ना व्यवहारिक रूप से अवगत हो पाएंगे। व्यवहारिक आप करके बताएंगे वो एक अलग बात है, हम लोग मौखिक रूप से बताते हैं वो एक अलग चीज होती है। आप जब क्रियात्मक पक्ष को करके बताएंगे तो बच्चे निश्चित रूप से कि उसका जो बारीकियां हैं मतलब उससे भी अवगत होंगे। दूसरा आपका प्रश्न था और अवसर क्या हो सकते हैं। अवसर और भी हो सकते हैं, परफॉर्मर आप हैं ही, शिक्षक हम बन ही सकते हैं। दूसरा हम एक अच्छे, आप किसी भी कंपनी जो हमारी जो चल रही है या हमारी जो प्रेस मीडिया है उसमें भी हम एक जो अगर हम रिपोर्टर बन जाते हैं तो एक डांस के बारे में बहुत अच्छा सा लिख सकते हैं। हम एक राइटर भी बन सकते हैं
है ना। हम एक पुस्तक लिखने के लिए, हम जरूरी नहीं है सीखने के बाद हर बच्चा परफॉर्मर बने, यह भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम सीखने के लिए हम एक अच्छे लेखक भी बन सकते हैं, हम उसके बारे में एक पुस्तक भी लिख सकते हैं, हम अच्छे एडिटर भी बन सकते हैं, एक अच्छे हम कोरियोग्राफर भी बन सकते हैं। जरूरी नहीं हम सिखाएं और हम परफॉर्म भी करें। कई कई जगह पे ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स आती है, नहीं परफॉर्म कर पाता कोई, तो हम अच्छा कोरियोग्राफर बन सकते हैं, अपना उस आइटम को कोरियोग्राफ करके ले सकते हैं। और दूसरा अवसर मैं भैया से आग्रह करूंगी कि गवर्नमेंट के ज्यादा से ज्यादा अवसर यदि मिलेंगे तो एक नृत्य का, जैसे बताया सौरभ जी ने बताया, इतना अच्छा इनका परफॉर्मेंस था। उन्होंने बताया कि आगरा में माँ तो ताज महोत्सव, या जब ये 4 साल यहाँ रहे तो उन्होंने ये सब चीजें यहाँ पर देखी, तो 2 या 4 प्रोग्राम इनको देखने को मिले। संगठन तो अपना कराते ही हैं, या कोई व्यक्तिगत संस्था है, निजी जो संस्थाएं हैं वो अपना कार्यक्रम कर रही हैं, लेकिन यदि गवर्नमेंट से अवसर प्रदान होंगे तो मुझे लगता है जो हमारी शास्त्रीय संगीत जो नृत्य की विधा है और अधिक उन्नति के अवसर प्राप्त कर सकेगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी तक हम लोग कथक डांसर्स थे, आज हमारे ओडिसी डांसर भी हैं, आज हमारे भरतनाट्यम भी है। आगरा शहर में जब ये 3 हमारी विधाएं मिल गई हैं तो 2 और मिल जाएंगी धीरे धीरे, ऐसा नहीं है, हमारे 2 और आ जाएंगी। जब ताज महोत्सव की इस बार प्रस्तुति के लिए डीएम साहब ने मुझे बुलाया और प्रेरणा गांधी जी को, तो उनका यही प्रश्न रहा था कि कृष्णांजलि करके उन्होंने हमें कार्यक्रम दिया कि आप लोगों को करना है, लेकिन उसमें आपको ये करना है कि हमें एक ही डांस फॉर्म नहीं चाहिए, हमें सारे डांस फॉर्म चाहिए। आपके बारे में हमको जानकारी नहीं थी, नहीं तो हम आपको भी उसमें जरूर इंक्लूड करते। तो हम अगले बार कभी हमको ऐसा अवसर मिलेगा, यदि हमको इस तरीके का मिला तो हम जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें और जोड़ेंगे। पहली बार हम लोग को दिया गया था मौका, तो हम भैया से मैं आग्रह करूंगी, सबसे ज्यादा नजदीक सरकार के आप रहते हैं तो आप ना और अधिक से अधिक अवसर अगर मिल जाएंगे तो ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम के, तो बच्चों को एक आगे बढ़ने के लिए रास्ते मिलेंगे। अभी सबका यही कहना होता है हम करें क्या, वहाँ गए उन्होंने डांस देख लिया, उधर गए उन्होंने डांस देख लिया, इधर गए उन्होंने देख लिया। तो हम आगे जाने के लिए वैसे और स्कीम्स भी चलती हैं। अगर एक पोर्टल बना हुआ है, यूपी का करके बना हुआ है, आप उसमें अपने खुद को भी आप उसमें लॉगिन करके आप उसमें वो कर सकते हैं, तो उसमें भी अवसर मिल सकते हैं आपको। तो ये भी अवसर प्रदान हो सकते हैं। और एक आप चाहिए तो संस्कृति विभाग को एक पत्र लिख करके आप कर सकते हैं। इस समय जो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी की जो आपके निदेशक महोदय हैं शोभित नाहर जी, काफी सक्रिय है इस समय, और BHU से आए हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो उनको लग रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं। तो आप चाहे तो आगरा में उनसे भी, उनके माध्यम से भी कुछ करा सकते हैं, और भी अवसर उनसे बात करके कि वो किस तरीके से क्या सुविधाएं वो अपनी देंगे, क्या आप अपनी देंगे। तो इस सुविधा को देखते हुए आप उनसे भी अवसर हम ले सकते हैं। तो अवसर तो आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए। आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं डांस के, और उसके अगर संस्कृति विभाग के संगीत नाटक अकेडमी दिल्ली से भी चलते हैं, उसको भी हम लेकर के प्रोजेक्ट के रूप में कार्य भी कर सकते हैं। तो वो अवसर भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे कुछ याद आएगा तो आप